عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلمان، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب مجھے ناشتہ دیا کرو تو فون اٹھا کر لے جایا کرو۔ مجھے دخل در ناشتہ قطعی پسند نہیں ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ ناشتہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے، اس لیے یہ ناشتہ معقولات نہیں بلکہ معمولات میں شامل ہے، اور دخل در معقولات کی اجازت ہوتی ہے۔ سلمان کا دور سے جواب آیا۔ تمہیں میں نے بارہا کہا ہے کہ ناشتے کے وقت تم فلسفہ نہ بگاڑا کرو، عمران نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ آپ جیسے عقل مند کے لیے فلسفے کا بگاڑ بے حد ضروری ہے جناب، سلمان نے ترقی بے ترقی جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے سلمان کے خوبصورت جواب پر بے اختیار مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ اگر آپ کو ریسیور میں سے فلسفے کے بگاڑ کی خوشبو آ رہی ہے تو برائے کرم اطمینان سے بیٹھ کر خوشبو سونگھتے رہیں اور مجھے ناشتہ کرنے دیں، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، ناشتہ کر کے فوراً میری کوٹھی پہنچو ابھی، اور اسی وقت دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کنجوسی کی بھی حد ہوتی ہے، یہ نہیں کہا یہ فضول ناشتہ چھوڑو اور میرے پاس آ کر شاندار ناشتہ کرو، عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تاکہ اس کا فکرہ سلمان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ آپ اسے فضول ناشتہ کہہ رہے ہیں، کس لحاظ سے؟ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سلمان نے غمگین سے لہجے میں کہا۔ تو اور کیا، یہ بھی ناشتہ ہے؟ ایک کپ چائے، 2 سوکھے سڑے سے ٹوسٹ اور ایک انڈا، یہ ناشتہ ہوتا ہے؟ ارے ناشتہ ہوتا ہے قیمے بڑے خالص گھی سے ترتراتے ہوئے پراٹھے، ان کے ساتھ خالص مکھن کا پیڑا، ساتھ ہی بڑا سا لسی کا بھرا ہوا گلاس، عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ناشتہ وہ کرتے ہیں جو کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، کوسوں پیدل چلتے ہیں، جسمانی محنت کرتے ہیں۔ آپ کی طرح کار میں سفر کرنے اور بیٹھے رہنے والے کے لیے یہ ناشتہ بھی منع ہے، سلمان نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ اور تم کون سے ہل چلاتے ہو؟ پیدل چلتے ہو یا محنت کرتے ہو جو تم مربوں، حریروں، خالص شاہد، انڈے اور پراٹھوں سے ناشتہ کرتے ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ جوانوں کا ناشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، سلمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، تو میں تمہیں بوڑھا نظر آتا ہوں، کیوں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی جناب، حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی ہے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے، سلمان نے جواب دیا اور سامان اٹھائے تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc/DSc آکسن از فلیٹ از فلیٹ سپر فیاض، جو کرتا نہیں کسی کا لحاظ، عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ سلطان بول رہا ہوں، کیا تمہارا ناشتہ بھی ختم نہیں ہوا؟ جلدی آؤ، میں شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فوراً آؤ، دوسری طرف سے سر سلطان نے اسے درمیان سے ہی ٹوکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے لفظ ناشتہ میں شتاب کا مخفف ہے، اور شتاب کا معنی ہے جلدی، اس کا مطلب ہوا کہ ناشتہ کا مطلب ہے جلدی نہ کی جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضول بکواس کی ضرورت نہیں، اٹ از موسٹ ایمرجنسی، فوراً آؤ ورنہ میں خود تمہارے فلیٹ پر پہنچ جاؤں گا، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ آج سرکاری تعطیل کے دن سر سلطان کو کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ کہیں آنٹی سے جھگڑا نہ ہو گیا ہو، عمران نے کہا، اور اٹھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار آفیسرز کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، جہاں سر سلطان کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ رہائش گاہ کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، اس لیے عمران کار اندر لے گیا اور اس نے پورچ میں لے جا کر کار روک دی، جہاں سر سلطان کی ذاتی کار موجود تھی۔ اور پھر جب عمران کار سے باہر نکلا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ہی سر سلطان کا خاندانی ملازم بابا الہی بخش موجود تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر عمران کو سلام کیا۔ ارے خیریت بابا، آپ اور یہاں کہیں جا رہے ہیں آپ؟ عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے کہ یہاں کھڑا رہوں، اور جیسے ہی آپ پہنچیں آپ کو فوراً بڑے صاحب کے پاس لے جاؤں، بابا الہی بخش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے بڑے صاحب کو اس قدر جلدی ہے؟
कहीं बेगम साहिबा से लड़ाई तो नहीं हो गई? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह नहीं छोटे साहब, बेगम साहिबा तो अपने अजीज़ों के यहाँ गई हुई हैं। बड़े साहब के पास 2 गैर मुल्की साहिबान मौजूद हैं। वो सुबह सवेरे आ गए थे और साहब ने नाश्ता भी उनके साथ ही किया है, बाबा इलाही बख्श ने कहा। गैर मुल्की? ओह तो ये मसला है, इमरान ने चौंकते हुए कहा और फिर वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि उसे मालूम था कि गैर मुल्कियों की वजह से सर सुल्तान ड्राइंग रूम में मौजूद होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इमरान ने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा। सर सुल्तान वाकई वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके साथ 2 गैर मुल्की भी मौजूद थे जो कौमियत के लिहाज से शुगरानी या बाचानी लगते थे। वो भी चौंक कर गौर से इमरान को देख रहे थे। वालेकुमुस्सलाम। आओ, ये जनाब क्यांग हैं, शुगरान नेशनल डिफेंस काउंसिल के नायब सरबराह, और ये जनाब पेनकिंग हैं, इनका ताल्लुक शुगरान वजारत खारजा से है। और जनाब इस इमरान का तफसीली तारुफ तो हो चुका है आपसे, सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो वो दोनों उठकर खड़े हो गए। आपके कारनामे तो हमने बहुत सुन रखे थे, मुलाकात आज हो रही है। क्यांग ने रस्मी फिक्रात की अदायगी और मुसाफे के बाद वापस सोफे पर बैठते हुए कहा। जनाब मैं क्या और मेरे कारनामे क्या, असल बात यह है कि मौजूदा दौर प्रोपेगेंडे का दौर है। अब तो हुकूमतें अपना इमेज बनाने के लिए प्रोपेगेंडे के माहिर रखती हैं, और मैंने भी यही काम कर रखा है। और जनाब सर सुल्तान सेक्रेटरी वजारत खारजा अज़राए शफ़क़त मेरे लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तो क्यांग और पेनकिंग दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। जनाब क्यांग और जनाब पेनकिंग शुगरान हुकूमत के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार हैं, और मेरे लिए ये एजाज़ है कि उन्होंने मेरे घर को रौनक बख्शी है। इसलिए तुम अब फजूल बातें न करो। ये इंतहाई अहम मामले में जनाब एक्स्ट्रो की इमदाद हासिल करना चाहते हैं, सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हमें जनाब अली इमरान की तबीयत के बारे में काफ़ी कुछ मालूम है जनाब, इसलिए आप फिक्र मत करें, हम इनकी बातों को एंजॉय कर रहे हैं, पेनकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका शुक्रिया जनाब। वैसे हमारे मुल्क के एक शायर ने बहुत पहले ऐसी सिचुएशन के बारे में एक शेर कहा था, जिसके मुताबिक बाग का हर पत्ता और हर बूटा तो हमारे हाल से वाकिफ़ था, लेकिन अगर कोई वाकिफ़ ना था तो वो बाग का फूल था, और सर सुल्तान हमारे पाक एशियाई बाग के सदाबहार फूल हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो क्यांग और पेनकिंग दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। प्लीज़ इमरान, मेरी दरख्वास्त है कि संजीदा हो जाओ, सर सुल्तान ने बड़ी बेचारगी के से लहजे में कहा। ओके हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात फरमाइए। जनाब क्यांग और पेनकिंग साहिबान, मैं हमतन गोश हूँ, इमरान ने कहा। इमरान साहब, जैसा कि सर सुल्तान ने आपको बताया है, हमारा ताल्लुक शुगरान हुकूमत से है। शुगरान हुकूमत इन दिनों एक इंतहाई अहम, नाजुक और संजीदा मसले से दो चार है। हमने अपने तौर पर इंतहाई कोशिश कर ली है, लेकिन हमारी तमाम एजेंसियां इस मसले को हल करने में नाकाम हो रही हैं, जिसके बाद एक आला मीटिंग में ये तजवीज़ पेश की गई कि इस मसले को हल करने के लिए पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से दरख्वास्त की जाए। चुनांचे शुगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाक एशिया सदर से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की, तो जनाब सदर साहब ने बताया कि चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस कार्रवाई करने या ना करने के सिलसिले में खुद मुख्तार हैं। जब शुगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने मजीद दरख्वास्त की, तो सदर साहब ने सर सुल्तान साहब का रेफरेंस दिया। चुनांचे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सर सुल्तान साहब से बराह रास्त बात की, तो सर सुल्तान ने बताया कि जनाब चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस ने तफसीलात मालूम होने के बाद काम करने का फैसला किया तो काम हो सकता है, वरना नहीं। लेकिन शुगरान प्राइम मिनिस्टर के मजीद इसरार पर सर सुल्तान ने वादा किया कि वो खुद भी उनके नुमाइंदा खसूसी से दरख्वास्त करेंगे, और उन्हें उम्मीद है कि चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस हुकूमत पाक एशिया और हुकूमत शुगरान के दरमियान बेपनाह दोस्ती और इंतहाई गहरे ताल्लुकात की बिना पर असबात में फैसला करेंगे। चुनांचे शुगरान हुकूमत की तरफ से हम दोनों यहाँ हाजिर हुए हैं। सरकारी तातील का रोज़ दांस्ता तौर पर मुंतखब किया गया है, ताकि यहाँ मौजूद दूसरे मुल्कों के एजेंटों को हमारी आमद का इल्म ना हो सके, क्यांग ने तफसील बताते हुए कहा। क्या ये शुगरान प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई ज़ाती मसला है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह नहीं जनाब, दरअसल ये मसला इस कदर अहम है कि शुगरान के प्राइम मिनिस्टर इस सिलसिले में बेहद परेशान हैं, क्यांग ने जवाब दिया। फरमाइए क्या मसला है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा।
क्योंकि क्यांग ने जो कुछ बताया था उससे ये जाहिर होता था कि वाकई कोई अहम मसला दरपेश है, वरना प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए बराह रास्त सर सुल्तान से बात न करते। जनाब शुगरान और बाचान के दरमियान समुंदर में एक जजीरा नवाजी है, खासा बड़ा जजीरा है और आबाद है। इस नवाजी जजीरे के गिर्द छोटे छोटे बेशुमार जजायर हैं जिन्हें जजायर नवाजी भी कहा जाता है। जजायर नवाजी पर पहले बाचान का कब्जा था, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद इन जजायर पर एक्रेमिया ने कब्जा कर लिया ताकि वो बाचान के दिफा के लिए यहाँ अड्डे बना सकें। चुनांचे वहाँ अड्डे भी बनाए गए और वहाँ दिफाई असला भी पहुँचा दिया गया और अब तक ये अड्डे वहाँ कायम हैं। इन अड्डों और वहाँ मौजूद असले से चूँकि शुगरान का दिफा मुतासर हो सकता था, इसलिए शुगरान ने इन जजायर से शुगरान को फौजी लिहाज से महफूज करने के लिए अपने सरहदी इलाके में ज़रूरी दिफाई इंतजामात किए। उसके साथ साथ वहाँ शुगरान ने अपने मुखबर भी रखे ताकि उन्हें इतलात मिलती रहें। उसके अलावा शुगरान ने अपने इलाके में ऐसे चेकिंग अड्डे भी बनाए जहाँ नस्ब जदीद तरीन मशीनरी के ज़रिए वो इन जजायर पर होने वाली दिफाई सरगर्मियों को चेक कर सकते हैं। क्योंकि आज तक इन अड्डों की तरफ से किसी किस्म का कोई ख़तरा शुगरान को लाहक न हुआ था, इसलिए शुगरान हुकूमत मुतमईन रही। लेकिन अब से 2 माह कबल अचानक शुगरान हुकूमत को इतला मिली कि एक्रेमिया जजायर नवाजी के एक छोटे से जजीरे माकू पर जदीद मशीनरी नस्ब की जा रही है और वहाँ मौजूद पुरानी मशीनरी को हटाया जा रहा है और जजीरे में पहले से मौजूद तमाम अफराद को निकाल दिया गया है। हमने ये समझा कि पुरानी मशीनरी की जगह जदीद मशीनरी नस्ब हो रही होगी, इसलिए हमें इस इत्तला पर ज़्यादा तशवीश न थी। लेकिन चूँकि वहाँ मौजूद हमारे मुखबर को भी दूसरों के साथ निकाल दिया गया था, इसलिए वहाँ के बारे में मज़ीद इत्तला ही न मिल सकी। हमारे चेकिंग सेंटरों ने भी कोई ऐसी इत्तला न दी जिससे हमें तशवीश लाहक होती। लेकिन फिर 1 माह पहले अचानक हमें मालूम हुआ कि उसी जजीरे के गिर्द ऐसी धुंध फैला दी गई है जैसे हमारे चेकिंग सेंटर भी चेक नहीं कर सकते। इस तरह ये जजीरा मुकम्मल तौर पर हमारी चेकिंग मशीनरी की रेंज से आउट हो गया। इस पर शुगरान हुकूमत ने एक्रेमिया और बाचान में अपने एजेंटों को अलर्ट किया तो सिर्फ इतनी इत्तला मिली कि हुकूमत एक्रेमिया ने माकू जजीरे पर जो मशीनरी नस्ब की है उसका मकसद शुगरान के दिफाई अड्डों, असले के स्टोर्स और तमाम दिफाई तनसीबात के बारे में मालूमात हासिल करनी है। क्योंकि एक लिहाज से शुगरान की मौत के मुतरादिफ था, इसलिए हुकूमत शुगरान ने इस बारे में फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया। शुगरानी सिगरेट सर्विस के साथ साथ और कई टॉप एजेंसियों को जजीरा माकू में मौजूद उस मशीनरी को तबाह करने का मिशन सौंपा गया, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब न हो सकी और उल्टा हमारे एजेंट या मारे गए या गिरफ्तार हो गए। और अब हुकूमत एक्रेमिया ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत शुगरान को आगाह किया है कि आइंदा अगर उनके ज़ेर कंट्रोल जजीरे के गिर्द कोई शुगरानी एजेंट नज़र आया तो शुगरान को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मगर शुगरान ऐसी धमकियों को खातिर में नहीं लाता, इसलिए हमने मजीद एजेंट भेजे। उनमें से सिर्फ एक एजेंट शदीद ज़ख्मी हालत में वहाँ से वापस आ सका। गो उसका इलाज किया गया लेकिन वो जानबर ना हो सका। उसने बताया कि वो इस जजीरे में दाखिल होने में कामयाब हो गया था और उसने वहाँ जजीरे के दरमियान एक छोटे से एरिए में 2 हैकल मशीनरी नस्ब देखी, लेकिन फिर उसे पकड़ लिया गया और उस पर तशद्दुद किया गया जिससे वो ज़ख्मी हो गया। लेकिन एक मौका मिल जाने से वो वहाँ से निकल आने में कामयाब हो गया। उसके बाद अब तक कोई एजेंट कामयाब नहीं हो सका और शुगरान के लिए हर गुजरने वाला दिन ज़्यादा तशवीश का बाइस बन रहा है। और इस सिलसिले में पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की खिदमात हासिल करने के बारे में सोचा गया, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेती है, क्यांग ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उस एजेंट ने जो कुछ वहाँ के मुतल्लिक बताया है उस सिलसिले में कोई तफसील? इमरान ने कहा। नहीं, वो इंतहाई शदीद ज़ख्मी था। उसने जो कुछ बताया वो भी बाचान में वाक़या शुगरान सेंटर में बताया है, क्योंकि वो वहीं तक पहुँच सका था, क्यांग ने जवाब दिया। तो हुकूमत शुगरान चाहती है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस माकू जजीरे पर मौजूद एक्रेमियन मशीनरी को तबाह कर दे, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। जी हाँ, क्यांग ने जवाब दिया। लेकिन इतनी बात तो आप भी आसानी से समझ सकते हैं जनाब कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस पाक एशिया की सलामती और दिफा के लिए कायम की गई है। वो किसी दूसरे मुल्क के दिफा और सलामती के लिए क्यों अपनी जानें खतरे में डालेगी, इमरान ने कहा। इसमें पाक एशिया का मफाद भी शामिल है जनाब, अलबत्ता इसकी तफसीलात आपको सर सुल्तान बता सकते हैं, क्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए थे, क्योंकि बज़ाहिर जो कुछ बताया गया था उसमें किसी तरह भी पाक एशिया का मफाद शामिल न था। इमरान बेटे, मैं मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि पाक एशियाई साइंसदान आजकल एक अहम दिफाई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं
जिसके तहत एक खसूसी साख्त के मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी तैयारी के बाद इस सारे इलाके में ताकत का तवाज़ुन पाक एशिया के हक में हो जाएगा। लेकिन इन मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला एक पुर्जा ऐसा है जो पाक एशियाई साइंसदान बावजूद कोशिश के यहाँ तैयार नहीं कर सकते, जिस पर हुकूमत पाक एशिया ने हुकूमत शुक्रान से मदद की दरख्वास्त की। क्योंकि शुक्रान ने भी ऐसे मिसाइल तैयार किए हुए हैं, इसलिए ये पुर्जा हुकूमत शुक्रान से हासिल करने का प्रोग्राम बनाया गया। गैर दोस्ताना तल्लुकात की बिना पर हुकूमत शुक्रान ने ये पुर्जा हमें भिजवा दिया, लेकिन जब उसे यहाँ चेक किया गया तो मालूम हुआ कि हमारे मिसाइलों में शुक्रान साख्त का ये पुर्जा काम नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी साख्त और तकनीक मुख्तलिफ है। अलबत्ता क्रेमिया ने जो इस टाइप के मिसाइल तैयार किए हुए हैं उनका पुर्जा काम दे सकता है, जिस पर हुकूमत क्रेमिया से दरख्वास्त की गई। लेकिन हुकूमत क्रेमिया ने न सिर्फ ये पुर्जा देने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने पाक एशिया पर दबाव डाला कि वो ऐसे मिसाइल तैयार न करे। लेकिन चूंकि बैनुल-अक़वामी तौर पर इसकी तैयारी ममनू नहीं है, इसलिए हुकूमत पाक एशिया ने यह दबाव मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद पाक एशियाई एजेंटों ने इस पुर्जे के हसूल के लिए काम शुरू कर दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बड़े तवील जदोजहद के बाद ये मालूम कर लिया कि इस पुर्जे की तैयारी के लिए क्रेमिया ने माकू जजीरे पर लेबार्ट्री कैंप की हुई है, ताकि कोई और मुल्क इस पुर्जे को चुरा ना सके। चुनांचे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वहाँ भी एजेंट भेजे, कई एजेंट मारे गए, लेकिन 2 एजेंट वहाँ पहुँच भी गए। उन्होंने इतला दी कि वहाँ वाकई उसकी लेबार्ट्री है, लेकिन फिर वो ये पुर्जा हासिल करते हुए पकड़े गए और क्रेमिया ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और हुकूमत पाक एशिया से बाज़ाब्ता एहतजाज किया। लेकिन जाहिर है पाक एशिया को अपना दिफा मतलूब है, इसलिए उसने कोशिशें जारी रखी। लेकिन फिर अचानक इस जजीरे के गिर्द धुंध फैला दी गई और इसके बाद कोई मिलिट्री एजेंट इसमें दाखिल ना हो सका और तमाम टीमें नाकाम वापस आ गईं। चुनांचे सदर साहब ने फैसला किया कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से इस बारे में दरख्वास्त की जाए। मेरी चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस से बात हुई तो उन्होंने बताया कि तुम टीम लेकर काफिरिस्तान किसी मिशन पर गए हुए हो, तुम्हारी वापसी के बाद वो फैसला करेंगे। इस दौरान शुक्रान ने इस सिलसिले में रब्ता किया, तब पता चला कि ये अब हमारा मुश्तरका मिशन है। अलबत्ता हुकूमत शुक्रान ने वादा किया है कि अगर पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इस पुर्जे के हसूल के साथ साथ वो मशीनरी भी तबाह कर दे जो शुक्रान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो दोनों हुकूमतों के दोस्ताना तल्लुकात मजीद गहरे हो सकते हैं और इससे जाहिर है फ़ायदा पाक एशिया को ही पहुँचता है। चुनांचे मेरी दरख्वास्त पर ये दोनों साहिबान तशरीफ़ लाए हैं ताकि तुम इनसे बराह रास्त तफसीलात मालूम कर सको। हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस सिलसिले में अब तक जो कुछ किया है उसकी तफसील इस फाइल में मौजूद है, सर सुल्तान ने कहा। लेकिन अब ये मिशन उनके असूलों पर पूरा उतर रहा है, इसलिए अब आप बेफिक्र रहें, अब ये मिशन मुकम्मल होगा। इमरान ने कहा तो क्यांग और पेनकिंग दोनों के चेहरे बेख्तियार खिल उठे। अगर ऐसा हो जाए तो ना सिर्फ हुकूमत शुक्रान बल्कि शुक्रान के अवाम भी पाक एशिया के हमेशा ममनून एहसान रहेंगे, क्यांग ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, दोस्ती में एहसान नहीं होता, दोस्ती ही निभाई जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। मुझे इजाज़त दें ताकि मैं ये फाइल भी चीफ तक पहुंचा सकूं और उनसे तफसील से बात भी कर सकूं, इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान के साथ साथ क्यांग और पेनकिंग भी खड़े हो गए और फिर इमरान उनसे मुसाफे करके कोठी से बाहर आया और चंद लम्हों बाद उसकी कार तेज़ी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वो फैसला कर चुका था कि इस मिशन पर बहरहाल काम करेगा, इसलिए वो इस मिशन के सिलसिले में ही सोच विचार करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।